Good morning, student. Today I am going to discuss this unit third, and this unit third is basically divided into two parts. The first part is basic astronomy, and the second part is global positioning system. Point of view, the global positioning system is very important. That's why I am delivering the second part in this lecture. And in this lecture, I am just going to I'm only going to discuss this introduction part. As compared to basic astronomy, GPS is very easy and very useful for nowadays. That's why I'm going to deliver here. So we will start with the introduction portion. First of all, let rewind what you mean by surveying. Basically, we have a piece of land. In this land, this red color is here for roads. The blue, light blue, or we can say the sky blue, is for river. And in this piece of land we have T1 and T2 are the tree, and here is a telephonic phone pole. So this is the P1 for electricity, or we can say the telephonic pole. Again, we have a garden in the form of a square, so we have this is the garden. So the surveying mean is you have to find the location of point with respect to any fixed point, right? So this is the definition of surveying. And this fixed point, the location of these points P1, T2 and T1, like we have the road R points. If we calculate these side points on roads, so we will identify the position of roads with respect to certain points, right? Similarly, for river case, we will mark some points on the bank of a river like this, and we will calculate the position of these points, right? Similarly, for garden, we will find the corner of garden, right? So these points can be calculated by the conventional method, and these conventional method we already covered, like these objects these objects can be classified into points form, line form, as well as area form, right? So point like T1, T2, P1 are the points. Line like the side of roads, okay, the side of river is the line form. And the area, if we going to calculate the whole area of this land with the help of triangulation or triliteration, then these 4 points are used for the control point like this. And if I am going to convert this whole land into a triangulation to calculate the area, then the object is known as in the area form. So these three things can be calculated by the conventional method, and the conventional methods are like, for distance measurement we have tape, chain, idiom, and for angular measurement we have theodolite, total station, like this, right? But what are the limitations of these conventional methods? These conventional methods have certain limitation. To overcome the limitation of conventional method, we will use GPS, right? So this is the advantage of using GPS. So we will cover the conventional method disadvantage. Like, conventional methods are only applicable if your stations or your objects are intervisible, okay? So intervisibility is the point, right? Again, the conventional method is depend on weather condition. Weather condition is the another points. And the third is, it is effective
when the daylight is quite good, so we can say that conventional method also depend on daylighting, right? So these are the disadvantages of conventional method. We cannot use conventional method when the stations are not visible from each point. When the condition are not favorable, like windy condition, or we can say the rainy condition, we cannot use conventional method. And similarly with the daylighting, if we have a glare, then we cannot use the conventional method. Like, to overcome this, we have a certain method. So scientists and engineer are going to certain method like GPS, which have certain property like ubiquitous. Ubiquitous means if you are using GPS at daytime as well as night time, means ubiquitous means you can use this at any time. So any time can be done. Your surveying method is like, your modern surveying method is just like that, it can be done at any time, either at daytime or nighttime. So GPS has the quality, and we will cover how it will work in our next lecture. So this is the first property for the modern surveying method. The second property which is looking for modern surveying method is versatile, right? Versatile means it can be used at any place of the earth. You can use at the land as well as at the sea, on the sea, at the land, on the sea also. You can use the modern surveying method on different kinds of land. The third property which is looking by the scientist or engineer for modern surveying techniques is economic. And the fourth one is easy to work with the modern surveying method. Under this modern surveying method, we have a GPS survey, which is global positioning system. So today I am going to show you some slides on GPS, which can cover the whole introduction portion of the GPS, right? So this is the first slide. You can see that basically GPS is the full form of GPS is Navstar GPS, right? So you can see here Navstar is stand for navigational satellite for timing and ranging global positioning system. So this is the modern surveying techniques. It is space based and used in all weather with the help of radio navigation system. It will provide PNT, position, navigation and time, right? Basically the advantages of GPS. Now I'm going to tell you the advantage of GPS. PNT. The position, first one is the position, the navigation, and for timing, right? Position which is given by GPS either in the two form. The first one is horizontal and second one is vertical. The GPS accuracy in horizontal and vertical is quite good. So 1 sigma, again I am going to tell you that I'm already covered this sigma. This is the standard deviation which is used for accuracy. So for horizontal it is plus minus 0.01 mm. Sorry, it is
plus minus 1 mm. For vertical, 1 sigma is equal to plus minus 5 mm. So this is the accuracy, as well as the position is given in Cartesian system. Cartesian system. In the Cartesian system we have x, y, z, or we have a different system also which is known as geodetic system. In this we have phi, lambda and h. This stands for latitude, lambda stand for longitude, and h stand for height. So what is the advantage of GPS? GPS give PNT. In this PNT we have the position which is in the form of Cartesian system or geodetic system. So it gives absolute position. This gives absolute position, where the conventional surveying method gives reference position, right? In conventional method we fixed one point which is known as control point. With the help of control point we find the distance as well as the angle from this reference point to our stations, to our subsidiary station or main station, right? For example, this is the land. We have a control point over here. This is my control point, and I have to identify the location of A and B point, right? So A and B point can be calculated with the help of this control point. So like this, okay, we will find the distance with the help of tape or chain, but we cannot find the value of x, y, z or x, y, z or the Cartesian position of point A and point B in the space. okay, तो यहाँ पे ये एडवांटेजेस हमें मिल जाता है जीपीएस से. कन्वेंशनल मेथड में हमें सिर्फ फिक्स्ड पॉइंट से रेफरेंस मिलता है, D1 और D2 ले लीजिए, तो ये फिक्स्ड पॉइंट से मिला तो रेफरेंस पोजीशन में पता चलता है, लेकिन जीपीएस में हमें एब्सोल्यूट पोजीशन के बारे में आइडिया लगता है. सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेजेस. तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है पीएनटी, और ये हेल्प करता है 24 आवर्स, तो आप इसे कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, पूरे साल भर आप अपनी पोजीशन को, अपने पॉइंट्स के पोजीशन को, अपने सर्विंग की पोजीशन को चेक कर सकते हैं. इट डज नॉट रिक्वायर ए क्लियर लाइन ऑफ साइट, राइट? इट डज नॉट रिक्वायर ए क्लियर लाइन ऑफ साइट. इन दिस फिगर अगर ए और बी के बीच में इस तरीके से कोई हिंड्रेंस आ गया, सपोज दिस इज अ हिंड्रेंस, तो कंट्रोल पॉइंट से ए एंड बी पॉइंट्स कैन नॉट बी सी, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द डिस्टेंस. हम ये डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द कन्वेंशनल मेथड. ठीक है, बट we can find the position of A and B point with the help of GPS, like this. This is the earth surface. We have point A and point B. With the help of satellite, we place our GPS device over A point and GPS device over B point. This satellite can directly find the position of this device. Okay, with the help of this we can find the Cartesian system of A and B, and that Cartesian system, अगर हमें इसकी पोजीशन पता चल गई
000, तो हम इसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं. सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ जीपीएस सिस्टम. इवन if we have a hindrance between A and B point, चाहे हमारे पास यहाँ बीच में हिंड्रेंस भी हो तो भी हम A and B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, साथ में पोजीशन फाइंड कर सकते हैं. GPS can carry out work in inclement poor weather condition, we already cover, क्योंकि GPS रेडियो सिग्नल्स के थ्रू वर्क करता है तो ये पुअर वेदर में भी काम कर सकता है. Even at night, better signals are available at nights. It overcome limitation in the conventional method of land surveying. तो लैंड सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, इसको भी हम डीपली समझ जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू, लैंड सर्वेइंग का ये आप अच्छे से समझ लाइए. तो हमारे पास ये इस तरीके से एक पीस ऑफ लैंड है. इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने मेन स्टेशन को डिफाइन करते हैं. एंड दिस मेन स्टेशंस हैव मिनिमम ऑर्डर लाइक दिस. तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, दीज आर माय मेन स्टेशन और कंट्रोल पॉइंट्स, लाइक कंट्रोल पॉइंट्स भी बोलते हैं मैंने. तो ये हमारे क्या है, मिनिमम ऑर्डर के हैं. सपोज टेक दिस इज द जीरो ऑर्डर. जीरो ऑर्डर से हमने इसको डिफाइन किया है. तो यहाँ पे ले लेते हैं हम इसकी एक्यूरेसी जो हमने यहाँ पे डिफाइन की. आफ्टर द पोजीशनिंग ऑफ मेन स्टेशन वी गो फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रायंगुलेशंस और पॉइंट्स. तो हम फिर उनको इस तरीके से कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके किसी न किसी मेन स्टेशन से कनेक्ट होते हैं, राइट. सो एवरी पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद द मेन स्टेशंस लाइक दिस. तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे फिर दूसरे ऑर्डर के इस तरीके से सबसे ऐसे मेरे कनेक्टेड हो गए. तो अब जो मैंने ये ब्लू कलर में बनाया है ये सेकेंडरी ऑर्डर के होने में, यानी कि हायर ऑर्डर का होगा. उसके बाद अगर मुझे इन स्टेशन से कोई और सपोज अब मैं इन दो स्टेशन को कनेक्ट करते हुए कोई तीसरा पॉइंट्स डिफाइन कर रहा हूँ, राइट दिस. तो ये जो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट यहाँ पे बनाया है ब्लू में, ये मेरे पास टर्शरी या सेकेंडरी ऑर्डर का ट्रायंगुलेशन बनेगा या ट्रायंगल बनेगा या उस ऑर्डर का होगा, ठीक है. क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये मेरे ब्लू सर्कल से मिलके बना हुआ है. तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे कन्वेंशनल मेथड में, कि कन्वेंशनल मेथड में लैंड सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, होल टू पार्ट जाते हैं. तो हम होल टू पार्ट गए, लेकिन जब हम होल टू पार्ट में जा रहे हैं तो हमारी जो ऑर्डर है वो इंक्रीज हो जा रही है, यानी कि जो हमारी एक्यूरेसी है उस पॉइंट को फाइंड करने की वो और कम होते हुए जा रही है, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही होगी. लेकिन इन केस ऑफ जीपीएस, अगर हमारे पास जीपीएस से हम ये सर्वे करते हैं लैंड सर्वे, तो जीपीएस में हमें होल टू पार्ट जब अगर हम जाते भी हैं तो उस केस में जिस एक्यूरेसी से जीपीएस में हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक डिवाइस रखेंगे, जीपीएस डिवाइस लाइक दिस. सिमिलरली यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे. ये डिवाइस से हमारे पास क्या होगा, पोजीशनिंग पता चल जाएगी लाइक दिस. वी विल फाइंड द पोजीशन ऑफ मेन स्टेशन. यही डिवाइस को फिर हम शिफ्ट करेंगे अपने सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर पे, तो यहाँ से भी इनकी पोजीशन पता चल जाएगी. तो जीपीएस की हेल्प से जब हम लैंड सर्वेइंग कर रहे हैं उस केस में जो हमारे ऑर्डर हैं वो सभी स्टेशन के सेम हो जाते हैं, जिससे हमारी जो एक्यूरेसी है पूरे वर्क की वो सेम रहती है. सो दिस इज द एडवांटेज
on land surveying while using GPS. GPS brought a paradigm shift in the instrument and method for land surveying. तो ये हमने आपको अभी समझा दिया है कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ GPS को मूव करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड. नाउ मूव टू द सेकंड स्लाइड. अब GPS काम करता कैसे है? हमारे अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से बहुत सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में. To identify the position of a single point, we need at least 3 स्टेशन. तो इस तरीके से कोई भी वो 3 सैटेलाइट की हमें जरूरत पड़ती है किसी भी एक पॉइंट को फाइंड करने के लिए. एटलीस्ट 3 सैटेलाइट की हमें जरूरत पड़ती है जहां से हम ये फाइंड कर दें. तो इसी तरीके से हमारे ऑर्बिट में 24 सैटेलाइट मिनिमम ऑलरेडी प्लेस्ड है. ये जो 24 सैटेलाइट प्लेस्ड करी गई हैं ये नर्व स्टार प्रोग्राम के अंडर प्लेस करी गई हैं, राइट. इसी से ही हमें GPS सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सिग्नल मिलते हैं और हमें वहां से पोजीशनिंग मिलती है. सो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें GPS की, इट प्रोवाइड लोकेशन ऑफ 3 डायमेंशनल ग्लोबल रेफरेंस सिस्टम. वी ऑलरेडी कवर कार्टेशियन सिस्टम. ये किसी फिक्स पॉइंट के अप्रॉक्स नहीं होता है, ये स्पेस में आपकी पोजीशन को बताता है और स्पेस में और भी सारी चीज़ें बता देता है जैसे नेविगेशन एंड टाइम. नेविगेशन मीन्स होता है वेलोसिटी कि आप किस तरीके से मूव कर रहे हो. तो पोजीशनिंग आपका XYZ में बताएगा, नेविगेशन आपकी वेलोसिटी के टर्म में बता देगा और टाइमिंग आप किस टाइम जोन में आप वहाँ पे हो. तो ये सब चीज़ें हमें बता सकते हैं जो कि कन्वेंशनल मेथड नहीं बता पाते. It conduct accurate surveying even in real time. We already cover this concept. क्योंकि आजकल जो सिग्नल हैं वो पावर स्ट्रेंथ के हो चुके हैं तो यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है. मच मोर एफिशिएंट, इकोनॉमिक, फ्लेक्सिबल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग इन कैरिंग आउट लैंड सर्विंग. कवर कर चुके हैं हम लैंड सर्विंग. वी हैव जस्ट मूव अवर GPS इक्विपमेंट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन. It gives all the data with the help of satellite position. So this is the slides. We have covered these last 2 points. I think we have to move to next slide. So here are the few good thing of GPS survey. It available wide variety at low cost GPS receiver and software. Basically in GPS suppose this is a GPS device at the position A. This is satellite. So what we will do in this GPS device, the data are provided by the satellites. This data is collected by the person, and the collected data is given in the form of information with the help of some software. So these are the 4 process: placing a device, data collection, and then with the help of software we extract the data into the information. Alright, तो ये चीज़ें हमें करनी होती हैं. बेसिकली हमें सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है, सॉफ्टवेयर में फिल करना है और इंफॉर्मेशन हमें आ जाती है. तो ये जो एक्टिविटी है ये वेरी इजी है. और अब हमारे पास GPS रिसीवर के इकोनॉमिक पैकेजेस भी अवेलेबल है. तो कन्वेंशनल मेथड के फॉर्म में GPS सर्विंग इकोनॉमिक पड़ती है और इजी भी है. Modernized GPS system provides more and more civil signals, powerful signals. तो ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे ग्रो कर रही है उस तरीके से जो सिग्नल्स हैं वो पावरफुल हो रहे हैं. तो पहले हमारे पास जो सिग्नल हुआ करते थे और अब जो सिग्नल हैं उनमें पावर का डिफरेंस आ गया, लाइक L1 L2. तो ये हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड वे में था. ये दोनों सिग्नल्स हमारे पास पावरफुल थे बट L2 हमारे रेस्ट्रिक्टेड था, उसे हम नाइट में नहीं यूज़ कर सकते थे, सिर्फ डे में यूज़ कर सकते थे. लेकिन हमारे पास L1 L2C और L5
इस तरीके से सिग्नल के टाइप हैं। तो ये पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अपने प्रीवियस वर्जन से। साथ में इसे हम ऑल वेदर या हर वक्त इसे यूज़ कर सकते हैं, इवन इन डे एंड नाइट। तो जीपीएस सर्विंग जो होती है वो सिग्नल पे डिपेंड करती है, और सिग्नल डे बाय डे पावरफुल होते जा रहे हैं, तो इसीलिए ये जो सर्विंग है ये एक्यूरेट भी होते जा रही है। सिग्नल अवेलेबल इनसाइड बिल्डिंग एंड अंडरग्राउंड दस मोर परवेडिंग एंड ग्रेटर यूजफुल। ये सिग्नल इतने पावरफुल हैं कि बिल्डिंग के अंदर एंड अंडरग्राउंड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, विच कैन नॉट बी प्रोवाइड बाय द कन्वेंशनल मेथड। It is simple and versatile in operation, replacing the conventional land serving method and instrument. Obviously, जब कोई टेक्नोलॉजी easily available हो जाए at lower cost, तो वो conventional method को replace कर देती है, और obviously we will looking for the advantages of modern surveying equipment over the conventional surveying equipment. हम लोग हमेशा पुराने इंस्ट्रूमेंट को अवॉइड करते हैं जब भी हम एक्यूरेसी की बात करते हैं। गेटिंग एक्सेप्टेड वेरी फास्ट बाय द इंजीनियर सर्वे कम्युनिटी, तो ये बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर दिया गया। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमें यहाँ पे समझने चाहिए जीपीएस के। इट कैन बी यूटिलाइज्ड टू एनी कंसीवेबल प्रोजेक्ट अंडर द स्काई वेयर पोजीशन, नेविगेशन, टाइम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और फिनोमेना इज इन्वॉल्व। तो जहाँ पे भी हमें पी&टी की जरूरत पड़ रही है किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है, ऐसा प्रोजेक्ट जो फीजिबल है, जो बन रहा है स्काई के अंडर में, जहाँ पे पी&टी की जरूरत है, वहाँ पे जीपीएस का यूज किया जा सकता है। लैंड सर्विंग में इट इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट गिव हायर ऑर्डर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट मैपिंग एटसेट्रा। तो ये हमने फिगर के हिसाब से समझ लिया था कि किस तरीके से जीपीएस की हेल्प से जो ऑर्डर ऑफ सर्विंग है उसको हम यूनिक रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है फोटोग्रामेटिकल कंट्रोल सर्विंग। फोटोग्रामेटिक सर्विंग में हमें एरियल व्यू फाइंड करना पड़ता है। सपोज दिस इज द सैटेलाइट एंड वी हैव टू लुक द ground view which is the aerial view, but the very important thing is here we have to maintain this height. तो जीपीएस में ये चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है बिकॉज जीपीएस गिव द कार्टेशियन सिस्टम पोजीशन एक्स वाई जेड, तो वहां पे हमें जेड की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन कन्वेंशनल मेथड में वी जस्ट प्लेस्ड एन एरोप्लेन लाइक दिस, और इस पे हम एक कैमरा फिक्स करते थे जो ये फोटो आगे खींचते हुए आपको एक मैप प्रोवाइड करता था, राइट, इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये जो हाइट है, ये हाइट सेम होने के चांसेस बहुत कम होते थे, तो जिसके लिए हमें फिर करेक्शन करना पड़ता था। तो इसीलिए जीपीएस की वजह से हमें जो फोटोग्रामेटिक सर्वे है उसको हम और डिटेल से कर सकते हैं। अगेन वी हैव ए डिफरेंट एप्लीकेशन इन जियोडेटिक, जियोफिजिक्स एंड क्रिस्टल मोशन। तो ये तीनों एक ही के पार्ट्स हैं। जियोफिजिक्स में हम अर्थ मूवमेंट के बारे में, जो फिजिकल मोशन एक्टिविटी अर्थ के ऊपर होती है, लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, इसके बाद इन दोनों एक्टिविटी या अदर नेचुरल डिजास्टर जैसे लैंडस्लाइड्स हो गया, या जो आजकल उत्तराखंड में जो रिवर का फ्लो अचानक से बढ़ जाता है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, जो वाटर की वजह से फोर्सेस लगते हैं, उनकी वजह से आफ्टर द नेचुरल डिजास्टर द डिफॉर्मेशन ऑफ लैंड कैन बी कैलकुलेट, बट डिफॉर्मेशन ऑफ लैंड कैन नॉट बी कैलकुलेट बाय द कन्वेंशनल मेथड। पहले ये पॉसिबल नहीं था, बट अब ये सारी चीजें पॉसिबल है। जियोडेटिक सर्वेइंग का मतलब होता है यू आर गोइंग टू स्टडी द शेप ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड्स एंड द पोजीशन ऑफ अर्थ इन द स्पेस। सो स्पेस में अर्थ की पोजीशन अब फिजिबल है विद द हेल्प ऑफ जीपीएस सिस्टम।
सिमिलरली क्रिस्टल मोशन, जो हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती है वेरी स्लोली, या तो अवे मूव करेंगी या फिर टूवर्ड द मूव करती है। तो इसका रेट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मोशन कैन बी फाइंड with the help of GPS system, because the signals are very powerful, which is going to tell you the information of underground things also. तो ये यहाँ पे अब पॉसिबल हो पाता है GPS सर्विंग के से। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड टेक आउट सर्वे। कंस्ट्रक्शन सर्वेइंग में जैसे आपके साइट होती है, साइट पे आपके पास ऑलरेडी मैप प्रोवाइड होता है ऑटोकैड की हेल्प से। लाइक दिस इज योर साइट। यहाँ पे आप कुछ कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, तो यहाँ पे आपके ऑटोकैड की हेल्प से मैप तो पता होता है, लेकिन ये कितना कंस्ट्रक्ट होता है टाइम के हिसाब से, और फ्यूचर में इसके एक्सपेंशन को देखना, ये अब पॉसिबल हो पाया है जीपीएस की हेल्प से, राइट। सो ये मैंने एक ब्लॉक बनाने की कोशिश करी है। एग्जाम्पल के लिए अभी एक और चीज़, कंटूर मैप ले लेते हैं इस तरीके से। ये एक पहाड़ का मैप है, ये भी एक पहाड़ का मैप है। यहाँ पे अगर आपने एक डैम बनाया, कंस्ट्रक्ट किया है, तो स्टेज बाय स्टेज आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं कि इसके बाद जो कैचमेंट एरिया है वो, इसका जो कैचमेंट, जो रिजर्वायर का एरिया है वो कितना है और कैचमेंट एरिया कितना है, जिसकी वजह से आप सबमर्ज्ड लैंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, सबमर्ज्ड लैंड को बिफोर कंस्ट्रक्टिंग दिस लैंड। तो ये प्रिडिक्ट करना, ये आइडेंटिफाई करना अब पॉसिबल हो पाया है ड्यू टू जीपीएस सर्विंग। तो ये इसी को हम कहते हैं स्टेकिंग ऑफ ऑपरेशन। फ्यूचर में क्या उसके वर्क हो सकते हैं या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट वन इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में जो कोस्टल एरिया होता है उनमें जो वाटर लेवल का इंक्रीमेंट और डिक्लिनेशन होता है वो हमें चेक करना होता है। तो ये भी हम जीपीएस की हेल्प से कर सकते हैं। अब पहले भी इस चीज़ को कर सकते थे, बट जीपीएस की वजह से क्या होता है, ये इजी हो गया है और रैपिड भी है, इसलिए हम ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। So this is the introduction of GPS सर्विंग। एक चीज GPS सर्विंग के लिए बोला जाता है GPS यूज ऑफ GPS। बेसिकली GPS uses is based on imagination of user। जिस भी चीज में आपको P&T, अब ये जो P&T है ये आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ को कैसे इन चीज़ों को रिलेट कर रहे हो। तो जो जीपीएस के यूजेस हैं वो इमेजिनेशन पे डिपेंड करते हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।